Thank you for clicking this video and welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to tell you about the vocab, how should you learn the vocab. Because vocab is a very necessary while learning this language, and if you want to speak English fluently, you need to learn the vocab. That is why I will tell you the some chapters. If you want to increase your vocab power, you need to learn this chapter. ग्रामर में कुछ चैप्टर्स हैं जो कि वोकैब को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद होती है. अगर आप अपना वोकैब इम्प्रूव करना चाहते हैं, यू हैव टू कवर द सम चैप्टर्स इन द ग्रामर. सो विच चैप्टर इज वेरी नेसेसरी, आई डोंट नो, एंड यू हैव टू रियलाइज which chapter is very necessary while learning this language. And if you want to increase your vocab power, and you need to learn this chapter, and now I will tell you the some chapter, then you will learn this chapter, then you will think about your vocab power. आपका vocab काफी हद तक सुधर जाएगा अगर आप कुछ चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो. मैंने सोचा कि मुझे कुछ वीडियो बनाना चाहिए vocab पे. Then you will get the knowledge about the vocab. Then you will have a more knowledge about the vocab. Actually, this problem I had also when I was a beginner. I was unable to know about the vocab, how we should cover the vocab, because that time also I didn't know too much about this language and how to practice and how to communicate with anyone. So I was unable to know. क्योंकि there are many people who are unable to know about the vocab, how we should learn the vocab. vocab जो कि एक सीक्वेंस पे सीखना चाहिए. अगर आप vocab एक सीक्वेंस पे, एक वे पे, एक ऑर्डर पे सीख लेंगे, then your vocab will increase a lot. आपका vocab जो कि काफी हद तक सुधर जाएगा अगर आप vocab जो कि एक सीक्वेंस में सीखना चाहते हैं. अगर आप vocab आप जो एक सीक्वेंस पे सीखेंगे, रियली मेक्स योर vocab will increase a lot. आप जो कि बहुत vocab सीख लेंगे अगर आप सीक्वेंस में vocab सीखेंगे, एंड यू विल मेक vocab योरसेल्फ. आप खुद से जो है कि vocab बनाने लगेंगे अगर आप सीक्वेंस पे सीखेंगे. बिकॉज देयर आर नो लिमिटेशन टू vocab. vocab का कोई लिमिटेशन है नहीं. vocab जो है कि कई vocab है और हर एक दिन vocab बनता है, हर एक दिन नया vocab बनता है. So here you have to understand that which vocab is very important for me and while learning this language, and you have to realize and you have to work on that. And if you want to increase your vocab power, you have to you have to work on that. Really, then your knowledge will grow and then you will speak fluently. अगर आप vocab में रियली काफी हद तक इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा इस vocab पर, क्योंकि हर एक दिन vocab बनता है, हर एक दिन न्यू vocab बनता है. और आज के डेट में हम लोग के लिए इंग्लिश जो है कि काफी हद तक जो है कि एक प्रॉब्लम हो गया है. देयर आर मेनी पीपल हु आर अनेबल टू नो अबाउट दिस लैंग्वेज. So we should not be afraid of this language, because this language is not a rocket science, and every person must make sure that to learn this language, and really you will learn this language if you have a courage. So I have collected some chapters, and this chapter you have to cover. Really, if you cover this chapter, make sure that your knowledge will increase in English, and you will know the many vocabs. अगर आप कुछ चैप्टर पढ़ लेंगे, आप खुद ब खुद vocab को बनाने लगेंगे. और vocab ऐसा चीज है कि बिना प्रैक्टिस से आपके अंदर में आएगा ही नहीं. बिना प्रैक्टिस से, if you don't practice the vocab, really you will not have a knowledge about the vocab. And after some days, after some times, you will forget the every vocab if you don't practice. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो vocab क्या भूल जाएंगे really. So here I will tell you some chapters. तो पहला चैप्टर है word formation. The first chapter is word formation. Really, this chapter is very important. If you cover this chapter, really make sure you will have a more knowledge about the vocab. आप vocab खुद से बनाने लगेंगे अगर आप word formation chapter पढ़ लेते हैं तो. I will take one example of this chapter, and that is accept. Accept एक क्या vocab है and verb भी है. आप जो है कि खुद से एक vocab से दूसरे vocab बना सकते हैं ये अगर आप word formation chapter कंप्लीट कर लेते हैं. एक्सेप्ट ये क्या वर्ब है, इसका मीनिंग होता है स्वीकार करना या प्राप्त करना. देखिए, मैं इसका एडजेक्टिव बनाऊंगा. एक्सेप्ट एक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट एक्सेप्टेबल. एक्सेप्टेबल इज अ एडजेक्टिव, बट एक्सेप्ट इज अ वर्ब. एक्सेप्ट एक्सेप्टेबल. अगर आप कुछ vocab सीख लेंगे ना, रियली यू विल मेक मेनी vocabs आफ्टर लर्निंग दिस चैप्टर. एंड एक्सेप्ट एक्सेप्टेबल, फिर अन्य आ जाएगा अनएक्सेप्टेबल. अनएक्सेप्टेबल रियली. एंड अगर आप एक vocab है आपके पास और जो है कि अन्य vocab आप जो है कि खुद ब खुद बना लेंगे आफ्टर लर्निंग दिस चैप्टर. एंड सेकंड चैप्टर इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन.
एंड दिस चैप्टर इज आल्सो इम्पोर्टेंट। रियली ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना वोकैब पावर इंक्रीज करना चाहते हैं, यू हैव टू लर्न दिस चैप्टर आल्सो। और ये भी चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए, दैट इज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये वोकैब में काफी हद तक इम्प्रूव कर देगा अगर आप इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेते हैं तो। बिकॉज व्हेन आई वाज बिगिनर दैट टाइम आल्सो आई हैड कंप्लीटेड दिस चैप्टर। रियली दिस चैप्टर इज वेरी अमेजिंग इफ यू लर्न दिस चैप्टर। लेकिन आपको प्रैक्टिस की बहुत ही जरूरत पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, रियली यू विल फॉरगेट द एवरी वर्ड। आफ्टर लर्निंग द एनी वर्ड आप कोई वोकैब नहीं जानेंगे। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप जो है कि कोई भी वोकैब में अवेयर नहीं होंगे, आप हर एक वोकैब भूलते जाएंगे। क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक डिफिकल्ट चैप्टर है और जो है कि काफी हद तक प्रैक्टिस मांगती है ये चैप्टर। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे देन योर नॉलेज विल इंक्रीज ऑन दिस चैप्टर। थर्ड चैप्टर इज इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये भी चैप्टर काफी हद तक जो है कि इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपना वोकैब को इंक्रीज करना चाहते हैं, यू हैव टू लर्न दिस चैप्टर आल्सो, एंड दैट इज idioms and phrases. And the last chapter is phrasal verb. This chapter is very remarkable if you want to learn the vocab and if you want to know this language, and really you have to learn this chapter and you have to cover this chapter, and that is a phrasal verb. काफी हद तक आपका वोकैब इंप्रूव कर देगा अगर आप फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, एंड यू हैव टू लर्न दिस चैप्टर। अगर आप ये चारों चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, रियली देन यू विल रियलाइज व्हाट इज योर पोजीशन, एंड यू नीड टू रियलाइज दैट हाउ यू शुड cover the vocab, because there are the many people who are unable to know about the vocab. और जो है कि vocab जो है कि एक प्रैक्टिस मांगती है। if you don't practice on any vocab, really यार you will not have a more knowledge. आपके पास ज्यादा नॉलेज नहीं होगा vocab के बारे में। अगर आप vocab में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कोई मान के जो कोई वर्ड सीख लिए और जो है कि उस वर्ड पे आप काम नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एंड जस्ट आफ्टर लर्निंग दिस चैप्टर एंड यू विल फॉरगेट द एवरी vocab. आप सब वोकैब भूल जाएंगे if you don't practice that, and every day you have to practice on each chapter. और प्रत्येक चैप्टर पर आपको जो है कि क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मान के चलिए एक दिन में मैंने कुछ दो तीन वोकैब सीखा एंड यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन दिस वोकैब, और इस वोकैब पर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एंड एवरी डे यू हैव टू मेक श्योर दैट, एंड दैट इज अ 5 वोकैब यू हैव टू लर्न, एटलीस्ट 5 वोकैब यू हैव टू लर्न। और हर एक दिन 5 वोकैब आपको सीखना है। अगर आप वोकैब पावर इंक्रीज करना चाहते हैं, रियली मेक श्योर दैट यू हैव टू लर्न एटलीस्ट 5 वोकैब। सो ये 4 चैप्टर आपको पढ़ने की बहुत ही जरूरी है अगर आप अपना वोकैब पावर इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर आप एक गुड इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अगर आप बेटर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अगर आप एक्सीलेंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। आपको प्रैक्टिस की बहुत ही जरूरत है। अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, आप एक प्रैक्टिस की जरूरत होती है, एक सीक्वेंस की जरूरत होती है, और जो है कि बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन प्रैक्टिस की बहुत ही जरूरत होती है। मान के चलो कोई भी जो है कि स्ट्रक्चर वगैरह सब कोई भी चैप्टर्स आप पढ़ा, एंड हाउ यू शुड प्रैक्टिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यू हैव टू नो एंड यू हैव टू फाइंड द समवेयर what is the best way to practice. I hope you will cover this chapter, and you must cover this chapter really yaar. If you want to increase your vocab power, you have to cover this chapter anyhow. And you will think that I will not complete any chapter, and just I will be the same what I was in the past time, and now I will be the same. No, that is not possible, that you will have a more knowledge about the vocab. And if you want to increase your vocab power, and you need to learn some chapters, आपको कुछ चैप्टर की पढ़ने की जरूरत। मुझे उम्मीद है आप ये चैप्टर कवर करेंगे। सो एंड स्टिल आई एम लर्निंग दिस लैंग्वेज। मैं अभी भी ये लैंग्वेज को सीख रहा हूँ, एंड समवेयर आई एम मेकिंग अ मिस्टेक, दैट इज नो प्रॉब्लम, बट टुडे आई एम मेकिंग अ मिस्टेक, बट ऑनवर्ड इंशाल्लाह आई विल नॉट मेक अ मिस्टेक, बट बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन दैट, एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट, and you will think that how to speak English. No, that is no possible, that without doing anything you will learn this language. No, you have to jump on this language, and you have to take action if you want to speak English fluently. ये जनरेशन में नॉलेज की जरूरत होती है, इस जनरेशन में नॉलेज की जरूरत होती है, और जो एक लोग इधर उधर भटक रहे हैं नॉलेज के लिए। So we should not go here and there, and just we should focus on the book, and we should focus on the chapters, and we should focus what you want.
अगर आप अपना डिजायर को फुलफिल करना चाहते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत है, कुछ करने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप अपना डिजायर को फुलफिल करना चाहते हैं, यू हैव टू वर्क समथिंग इन योर लाइफ रियली यार, देन यू विल गेट समथिंग व्हाट यू वांट। तब आप कुछ पाएंगे आप क्या चाहते हैं। ऑलराइट,